So hello everybody, we welcome you to yet another podcast and आज के इंटरव्यू में वी गोना बी टॉकिंग विद तथागत. तो तथागत क्रेड के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड बिफोर दैट इज ऑल्सो वर्कड एट प्लेसेस लाइक कोडिंग ब्लॉक्स, इक्सीगो एटसेट्रा. तो आज हम वो सब क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है उसके माइंड में होते हैं. एंड ये सब क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि व्हाट इज़ अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना पैसा कमाते हैं, वो 12 लाख 30 लाख 40 लाख के पैकेजेस को ग्रैब करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. And by doing all that, we will help you decide if you want to become a software engineer at the first place, and if yes, then how tough is it to become one. So without any further ado, this is your host Naman Monga. You're watching Botscope. Let's get started. Hi guys, we welcome you to yet another podcast, and today we have Tathagat with us. So Tathagat, how are you? Hi Raman, I'm good. How are you? I'm fine too. So Tathagat, first of all, would you like to just introduce yourself, what you're doing, what you're up to currently? Sure. So I am currently working as a front-end engineer at CRED. I joined CRED recently, like 5 months back. Before that, I was working with Ixigo as a front-end engineer. So like I've been into front-end only from the time I was in the final year of my college and all those times. So I'm continuing to do that only. So yeah, I'm working from home as a front-end engineer at CRED right now. That's cool. Like a pretty minimalist intro. But yeah, like as we move on to the podcast, we'll unlock other layers of the Thagat as well. So the theme of the podcast is going to be around: do you should you become a software dev or not? तो उसी के around we'll try to ask different questions from Tathagat. So what's like a day in the life of a software dev, or maybe a day in the life of a software dev at CRED? This question has like two aspects. Okay, one is when the offices are open, and one is when offices are not open. Okay, so the current scenario is offices are not open. So your entire days, you like definitely you have to work. काम तो होता ही है, but it starts with you wake up and open your laptop, and you see like maybe few messages from your peers to just maybe fix something, or some bug has come or some request to do this. So it starts with opening those emails or reading those texts, and then there's no time actually at which the work starts. ठीक है, जब उठोगे तब मतलब अब मेरे को मैंने लैपटॉप खोला है, सी 10 मैसेजेस. ठीक है, उसमें से एक दिखता है यार ये बग है, तो आई हैव टू टेक लाइक नेसेसरी एक्शन ना. मतलब मैं इग्नोर नहीं कर सकता देख कर कि भाई ये तो चलो बाद में करते हैं. ठीक है, सो द डे स्टार्ट्स विद मोस्टली ऐसे ही होता है. वो पिंग्स आ रखे होते हैं बिकॉज सिंस वी आर वर्किंग फ्रॉम होम ना, सब लोग अलग अलग टाइम पे काम कर रहे होते हैं. तो मतलब हो सकता है कोई जल्दी सो जाता है, बट फ्यू पीपल लाइक वर्क टिल लेट नाइट. सो लेट नाइट पिंग कर रहे होते हैं आप, एंड यू रीड देम सुबह सुबह. सो इट्स नॉट अ वेरी प्लीजेंट थिंग टू सी. उठते ही मतलब आप लैपटॉप पे ऐसे देख रहे हो, आपको टैग किया हुआ जगह जगह. सो द डे स्टार्ट्स विद दिस जनरली. ठीक है, and so this goes on like once the laptop is open na, so it actually does not shut down. मेरा personal laptop, like I haven't shut down my laptop from like ऑलमोस्ट द डे आई ज्वाइन करेक्ट. ठीक है, तो मैं लैपटॉप बिल्कुल बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब एक होता है कि लाइक यार इतनी चीज दोबारा खोलनी पड़ेंगी कल सुबह फिर से. लेट्स नॉट क्लोज दिस. ठीक है, एंड आई पर्सनली लूज कॉन्टेक्स्ट व्हेन आई क्लोज द विंडोज. जो भी लैपटॉप में खुली है सब कुछ, तो सब कुछ खुला है, लैपटॉप खुला है पूरे दिन. यू कीप ऑन वर्किंग. फिर आप लोगों से कनेक्ट करते रहते हो दिन भर. सिंक मतलब सिंक अप्स होते हैं काफी सारे. ठीक है, यू यू हैव टू सिंक अप विद पीपल कि ये सॉर्ट करना है, तो ठीक है इससे मीटिंग करनी है, ये सब करना है. सो योर डे गोज ऑन लाइक दिस, एंड देन इवेंचुअली यू स्टार्ट फीलिंग कि यार बहुत सारा काम हो गया. टाइम लिमिट नहीं होती बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम ना. सो यू यू हार्डली रियलाइज कि कितना टाइम हो गया. सो अब लैपटॉप मतलब द टाइम, जैसे ऑफिस में कहते हैं ना जनरली कि यार 9 to 5 जॉब है, बट स्टार्टअप्स में और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो ऊपर से, तो यू हार्डली गेट अ चांस टू डू 9 to 5 वाला लॉजिक कुछ होता नहीं है. मतलब इट इज 9 एट एवरी डे एंड एवरी टाइम, एंड 5 एट एवरी डे एंड एवरी टाइम. कभी भी लैपटॉप खुल सकता है, कभी बंद हो सकता है. सो आप काम करते हो, सिंकअप्स करते हो, सब कुछ करते हो, तो बेसिकली एंटायर डे ऐसे ही निकल जाता है. देन इवेंचुअली यू रियलाइज कि यार अब ज्यादा हो गया, अब कल करते हैं. सो यू हैव टू ठीक है इसको कल करते हैं. मतलब अपने आप से कॉल लेनी पड़ती है. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने बजे तक काम करना है. आई सी पीपल वर्किंग फ्रॉम लाइक कभी कभी तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम कर रहे होते हैं कई सारे लोग. आई सी पीपल ऑनलाइन एट लेट नाइट. तो वो सब मतलब वर्क फ्रॉम होम में तो ऐसे ही चलता है. बट स्टिल कुछ नो, फिक्स्ड मीटिंग्स होती है उनकी, जैसे सिंक अप जैसे आप बोल रहे थे मीटिंग्स हैं, तो वो क्या अराउंड अराउंड
हाँ, सो सिंकअप्स तो लाइक हर जगह ही होते हैं कि प्रॉब्ली लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू वर्किंग अपॉन, ऐसे सिंकअप्स हो जाते हैं डेली। डेली स्टैंड अप्स होती हैं एंड सो देयर आर फ्यू मीटिंग्स व्हिच आर फिक्स्ड, मतलब वो होनी है। बट कुछ मीटिंग्स होती हैं जो एक्चुअली में लाइक क्राइसिस के वजह से एकदम से ओरिजिनेट हुई कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है, ये तो शायद चार लोगों को बैठ के फिक्स करना पड़ेगा, सो वी हैव टू डू दिस। तो मीटिंग सुबह सुबह ही शेड्यूल हो रही है, तो ऐसी भी मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी। एंड उसके अलावा वन वन मोर फन पार्ट इज लाइक जब आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जॉब अगेन। तो यू हैव टू टेक इंटरव्यूज बिकॉज यू हैव टू हायर फोक्स ना। तो लाइक वी एट क्रेड आर वेरी एक्टिवली हायरिंग पीपल एट दिस टाइम। सो काफी सारे इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यूज ले रहे हो आप दिन में, तो दैट इज ऑल्सो फन पार्ट। मतलब तो इट इज नॉट दैट मोनोटोनस विच आई शुड सी से, बट काफी ज्यादा मतलब डायनेमिक चीजें होती रहती हैं। कभी भी किसी का पिंग आ जाए कि यार एक बार कॉल पे आते हैं, आई वांट टू रिजॉल्व दिस, कैन यू हेल्प मी। सो द डे इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, तो आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। एज अ फुल टाइम इंटर्न पे काफी काम किया था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मतलब वो एक्सपीरियंस इज समथिंग विच आई शुड से कि एक्चुअली में ऑफिस खुलना चाहिए। तो ऑफिस क्यों खुलना चाहिए? क्योंकि कई सारी रीजन की वजह से कि यू एक्चुअली गेट अ टाइम टू रिफ्रेश योरसेल्फ, ठीक है। बिकॉज यू हैव पीयर्स अराउंड यू टू जस्ट हैंग आउट एंड चिल विद देम। सो मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे घर पे तो आप पूरे टाइम में लैपटॉप के सामने बैठे हो, चीजें करे जा रहे हो, एंड इफ यू लाइक वांट टू टेक अ ब्रेक, यू जस्ट गो अवे फ्रॉम योर स्क्रीन एंड यू डोंट हैव एनीवन लाइक अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली टू एक्चुअली सिट विद और टॉक विद। सो बट ऑफिस में तो आपके इतने सारे लोग बैठे हैं कि यू जस्ट कीप ऑन रिलैक्सिंग विद एंड व्हाइल टॉकिंग विद देम। मतलब ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो द मीटिंग्स बिकम वेरी इजी। ऑफिस में मीटिंग करनी है, कुछ करनी है, तो किसी से शेड्यूल नहीं करनी, जाके उससे पूछ लो, मतलब एकदम सॉर्ट हो जाएगा चीजें। सो आई लाइक आई सी आई एंड आई हैव हर्ड सर्टेन थिंग्स कि यार ये चीज जब घर से करते थे ना, 4 घंटे लग गए थे रिजॉल्व करने में, ऑफिस में जाके 10 मिनट का काम था ये सब। तो सी दी अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन दी प्रोडक्टिविटी की मतलब क्या होता है। एंड देन टीम बॉन्डिंग इज दी प्रायोरिटी। तो टीम बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होती घर पे बैठे हुए। तथागत ऐसे होता है कि जो मेजोरिटी जो फ्रेशर्स होते हैं कॉलेज में आते हैं या फिर इन जनरल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि तुम पूरा दिन बैठ के कोडिंग करोगे। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग्स के अंदर ऐसा होगा कि जैसे सिंकअप हुआ तो उसमें तुमने डिस्कस किया आज तुम्हें क्या कोड करना है, आज मैंने क्या कोड करना है, बस वो कोड करने बैठ गए। और वही मतलब बस दिन में कोड किया, रात को सो गए। तो क्या यही स्केड्यूल होता है कि इट्स लाइक देयर इज अ डिफरेंट डायमेंशन टू इट? सो अगेन पीपल लाइक आर डूइंग कोडिंग, तो एक आपका प्राइमरी पार्ट है, ठीक है। यू हैव टू डू दैट एंड मतलब टास्क होगा तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम इट लाइक यू कांट स्टार्ट, तो सीधा कोडिंग स्टार्ट नहीं होती है ना। मतलब यू हैव टू जस्ट एनालाइज दिस टास्क यार इसको करना कैसे है। यू डिस्क वॉक थ्रूज है, काफी सारी वॉक थ्रूज करनी पड़ जाती हैं कि यार ऐसे फीचर बनाना है, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट बिजनेस पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर इसको बनाने के लिए आर्किटेक्चर क्या होगा। सो वो सब चीजें आर लाइक वो कंज्यूमर फेसिंग नहीं है, मतलब दिखेंगे नहीं आपको, बट इससे ये डिस्कशन तो ऑलरेडी होती है हर जगह पे कि इसको बनाना तो है, बट उससे पहले लाइक यू हैव टू ले अ फाउंडेशन ना कि हाउ हाउ विल वी बिल्ड दिस, कि ये क्यों कर भी क्यों रहे हैं हम, मतलब जो करने का फायदा भी है क्या। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई भी रैंडम फीचर एक किसी के दिमाग में आया एंड हम बना देंगे। मतलब यू हैव टू क्वेश्चन अबाउट, कीप क्वेश्चनिंग अबाउट इट कि यार इसको बना तो देंगे ठीक है, बट बना के क्या बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो हम सोच रहे हैं वैसा होगा। तो लाइक डिस्कशंस होती हैं काफी सारी, एंड कोडिंग इज दी I would say the not worst, the most boring part actually when it comes to build a feature. अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने मोस्टली स्टार्टअप्स में काम किया, लाइक अर्लियर यू वर आल्सो पार्ट ऑफ Hmm. कोडिंग ब्लॉग्स एंड यू वर एट इक्सिगो एंड रिसेंटली यू Hmm. जॉइंड क्रेड। तो यू माइट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो एमएनसीज में काम करते हैं, लाइक जेपी मॉर्गन और माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टफ। तो उनके लाइफ में एज अ प्रोग्रामर और आपकी लाइफ में आपको कोई डिफरेंस अगर दिखे हो, कुछ इनसाइट्स की क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं कि अगर किसी को चूज करना है कि कहाँ जाए, तो वो क्या प्रेफर करे उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर? The startup people hustle more, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स आर लाइक एट अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्पेस ना। मतलब ऐसी स्टेज पर होते हैं इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस स्टेज पे होती है। तो बट एमएनसीज आर लाइक एस्टैब्लिश्ड, मतलब एक फर्म बड़ी बड़ी बनी हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनमें कुछ ऐसा डिसरप्शन नहीं करना आपको एकदम से लाइक, ठीक है। यू विल बी वर्किंग लाइक मतलब डिसेंट पेस पे काम होता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं करते वो लोग, बट एज कम्पेयर टू स्टार्टअप गाइस, जो लोग स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो वहां पे स्टार्टअप में काम बहुत होता है। मतलब देयर इज नो 9 to 5 थिंग, ठीक है। मतलब आई नो पीपल वर्किंग इन एमएनसी, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो हार्डली वो उनका मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज रहती है कि लाइक हम लोग 10 साढ़े 10 बजे अंदर लॉग इन करते हैं,
वी कम ऑनलाइन, अटेंड फ्यू मीटिंग्स, एंड देन 5:36 तक हम लोग मैक्सिमम रैप अप कर देते हैं। एंड उसके अलावा उसके बाद कोई ईमेल्स वगैरह कुछ नहीं पढ़नी, ठीक है। एंड दी पॉलिसी इज सो सच की मतलब वहां पे बोला है कि आपको ईमेल का रिप्लाई करना ही नहीं है इफ यू गेट द ईमेल्स आफ्टर द ऑफिस आवर्स। बट स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप्स में यू लाइक वर्क वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर, सो मतलब आप स्टार्टअप में क्यों हो? अगर काम ज्यादा मिल रहा है तो क्या बेटर चीज है जो स्टार्टअप में आपको लगी कि आप स्टार्टअप्स में ही काम कर रहे सर स्टार्टअप्स में एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यू एक्चुअली मतलब मेरे को जो पर्सनली फील हुआ कि योर डेवलपमेंट इज 360। ऐसा नहीं है कि मतलब यू आर जस्ट अ फ्रंट एंड इंजीनियर और इंजीनियर, ठीक है। हो? यू आर प्रोडक्ट मैनेजर एट द सेम टाइम। यू आर लाइक टेस्टिंग भी आप खुद ही ढंग से करके दे रहे हो। सो यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स अंडर अ सिंगल रोल। तो वो वाली चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू मी। एंड एमएनसीज का वही है कि एमएनसीज में यू हैव अ मोर ईज आउट जॉब, मतलब थोड़ा सा काम का डिसिप्लिन रहता है कि यू हैव टू वर्क इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, उसके बीच में काम होगा, उसके आगे पीछे कोई आपका आउटसाइड वर्किंग आवर्स में नो वन विल इवन बॉदर टू डिस्टर्ब यू। तो द लाइफ इज इंटायरली डिफरेंट एंड आई चोज स्टार्टअप वाला चीज बिकॉज पहली बात तो मेरे को एमएनसी से ऑफर नहीं आते थे, क्योंकि एमएनसी का अलग ही पैटर्न होता है सिलेक्शन का। वो मैं डीएसएल का वगैरह करता नहीं हूँ। हम्म। बट स्टार्टअप्स एक्चुअली टेस्ट यू ऑन योर स्किल्स, जो आपको आता है, काम क्या किया आपने नहीं किया। तो इसलिए मैं तो स्टार्टअप्स का ही बना था। बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि एमएनसी से भी ऑफर था, स्टार्टअप से भी ऑफर था। मैंने एमएनसी को ठुकरा दिया, ऐसा नहीं था। आई डिड नॉट इवन रिजेक्ट अ सिंगल एमएनसी का ऑफर बिकॉज आई डिड नॉट गेट अ सिंगल एमएनसी का ऑफर। तो आई ओनली अप्लाई फॉर स्टार्टअप्स बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ एंड आई नो ना कि मैं कहाँ लैंड कर सकता हूँ। आई नो कि एमएनसी में जाऊंगा वो लोग दे माइट रिजेक्ट मी, सो आई ट्राई टू जस्ट वेस्ट द टाइम ऑफ देम एज वेल एज माइन। तो आई जस्ट अप्लाई लाइक। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लग गया स्टार्टअप्स में कि यार काम बहुत करते हैं, तो यू एक्चुअली आर अहेड ऑफ यू पीपल। लाइक जब ज्यादा काम करोगे तो इवेंचुअली लर्न मोर एंड यू विल बी अहेड ऑफ योर फोक्स योर पीयर्स ना। हाँ, इस चीज में मैंने भी एक पर्सनली कि मेरे को भी 2 महीने हो गए इंटर्नशिप स्टार्टअप में करते हुए। तो मेरे भी दोस्तों से बात होती है तो मैंने एक चीज देखी है कि जो एमएनसीज होती है तो उसके अंदर तुम्हारा मैनेजर को भी नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट होता कभी किसी काफी काफी टाइम पे क्लाइंट्स के साथ। तो कोई भी अरे बंदा सॉर्ट ऑफ ड्रिवन नहीं है और पैशनेट नहीं है जो प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। बट अगर आप अपने स्टार्टअप की बात करो तो उसमें आपको पता है कि आप ये कोड लिख रहे हो, इसको कितनी कौन लोग यूज करेंगे और इसका मतलब डायरेक्टली आपको एक इम्पैक्ट दिखता है। तो उससे मेरे को लगता है एक डिफरेंट ही मोटिवेशन आती है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टअप इज अ 360 डेवलपमेंट। मतलब आपको हर चीज पता होगी कि मतलब हाउ इज दिस फीचर मतलब इम्पैक्टिंग पीपल, व्हाट इज द मेट्रिक्स, इसके इस फीचर को बनाने से क्या इंप्रूवमेंट्स हुई, और नंबर्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं। बट एमएनसीज में यू हार्डली, एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है कि यू हार्डली गेट अ चांस टू एक्चुअली सी कि एक बार फीचर शिप हो गया ना, व्हाट आर दी इनसाइट्स, क्या मेट्रिक्स ड्रॉ हुए इस फीचर से, क्या इम्पैक्ट आया उस फीचर का, मतलब वो पता नहीं होता। एंड यू जस्ट बिगिन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टास्क। तो दिस मेट्रिक्स पर्सनली फॉर मी इज अ ड्राइविंग फोर्स। मतलब अगर मेट्रिक्स बहुत ज्यादा अच्छी खासी मेट्रिक्स हुई है किसी फीचर को बनाने के बाद, सो यू गेट अ पंप ना कि भाई मैंने क्या फीचर बनाया, मतलब सी व्हाट इम्पैक्ट दिस फीचर गिव। तो अब ऐसा करते हैं कि अब हमारी काफी डिस्कशन होगी कि व्हाट इज लाइक बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेव। तो आपके अकॉर्डिंग पे स्केल क्या रहता है एज अ सॉफ्टवेयर डेव कंपनीज में इन जनरल? ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लाइक आई विल स्टार्ट विद फ्रेशर ही स्टार्ट करते हैं। सो इफ समवन इज अ फ्रेशर एंड ही इज लाइक डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेज। सो फॉर एग्जांपल कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आती है हमारे, ठीक है, तापर में माइक्रोसॉफ्ट आती है। सो माइक्रोसॉफ्ट यूजुअली का जो पैकेज होता है, जितना मुझे पता है, अपनी लास्ट इनसाइट है जो मेरी, तो 12 LPA का बेस होता है उसका, ठीक है। एंड उसके अलावा ईसॉप वगैरह करके वो कहीं 40 तक पहुंचा देते हैं उसको, स्टॉक्स वगैरह डाल डाल के उसमें। सो बेसिकली 12 का बेस इज इवेंचुअली व्हाट इज योर, मतलब 12/12 इज 1 लाख पर मंथ इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी इन योर बैंक अकाउंट। उसके ऊपर टैक्स वैक्स कटेगा, ठीक है। सो स्टार्टअप्स आज की डेट में स्टार्टअप्स मतलब ऐसे भी हैं कि मतलब 15 लाख भी दे देंगे, 16 लाख भी दे देंगे, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस पैकेज। तो यू माइट गेट 14 12, मतलब 12 से ज्यादा तो मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को नहीं मिलता है। उसके अलावा ई शॉप्स आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो स्टार्टअप्स गिव यू मोर मनी बट देन यू हैव टू वर्क मोर, मतलब वो ट्रेड ऑफ है, ठीक क्या मतलब अगर हम अज्यूम करके चलें इफ यू लैंडिंग अ गुड लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बी इट अ स्टार्टअप और बी इट एन एमएनसी, देन you can get up to 10 to 12 LPA if you're like decently skilled in either data structures and algorithms part or maybe your development. So any one है। of
बीस, तो 12 लाख के राउंड तुम्हें मिल सकते हैं। अब ऐसा है कि किसी को सॉफ्टवेयर डेव में भी अब इंटरेस्ट आ गया है और पैसे भी वो कह रहे हैं कि ठीक है काफी मिल रहे हैं। तो अब हम्म। अगर हम बात करें इन लेमन टर्म्स, हम जारगन डिस्कस नहीं करेंगे, बट कितना मुश्किल है वो स्किल सेट्स अटेन करना। आपके केस में कितना मुश्किल था एक 12 लाख के पैकेज के राउंड हिट करना एज अ फ्रेशर? So let's break this question in two parts. जैसे था मतलब कि how much difficult is it to actually get a good job, ठीक है? And second is कि what does it take to actually build those skill set which eventually gives you this good job. So when I was in like college का first year second year था मैं, तो मैंने काफी सारी चीजें explore करी थी। मतलब I was like doing various things, मतलब 2-3 महीने ये कर लिया, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, फिर ये कर लिया। So I kept on exploring things, but eventually you have to stick to one thing to actually, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वही करते रहो, but थोड़ा सा you have to decide कि यार ठीक है ये चीज करूंगा मैं, I'll be a app developer या say I'll be a मतलब ML guy. So you have to decide कि यार क्या करना है, and you have to consistently practice that just to get above average. You have to raise your bar again to stand out in the crowd. So uske liye you have to be consistent in what you are doing. I see like a lot of people ranting ki tier 1 वाले opportunities ले रहे हैं बहुत अच्छी, ठीक है, it is true कि मतलब tier 1 वाले opportunities ले जाते हैं initially अच्छी, but then 2-3 years down the line of everyone's career वो college का tag not actually matters. Your work is what actually matters, your experience is what actually matters, whom you are, like your personality as an individual actually matters. So I would suggest these things again if you talk about how to crack a job or what it takes to actually get a good job. एक टाइम फ्रेम अगर आप सजेस्ट कर पाओ कि अगर मान लो एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेव नाउ, बट आई हैव नो आइडिया इन प्रोग्रामिंग, आई हैव लाइक लिटरली नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सो हाउ मच टाइम अकॉर्डिंग टू यू इट विल टेक टू लैंड अ जॉब एज अ फ्रेशर, लाइक एनीथिंग एन एस्टिमेट? व्हाट आई वुड हैव डन अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता कि ठीक है मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती है, आई एम फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, एंड सडनली मुझे एक दिन ख्याल आता है कि चलो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि मतलब अच्छा ऐसा लगता है, कूल है, ठीक है। तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, सबसे पहले तो मैं ये देखता भाई जिंदगी में होता क्या है सॉफ्टवेयर डेव की, मतलब अगर मैं बन भी जाऊंगा तो मैं मतलब वुड आई बी एबल टू कीप अप विद दैट। तो वो यस और नो का आंसर होता है उसमें, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता शायद कर लूं, मतलब होता कि हाँ यार कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा तो कहानी खत्म, कर लूंगा तो अब मैं देखता कि अच्छा ठीक है कर तो लूंगा। नाउ व्हाट डज इट टेक टू एक्चुअली बिकम अ सॉफ्टवेयर डेव इन टर्म्स ऑफ कंपनी में कैसे घुसा जाए, मतलब क्या आना चाहिए आपको, या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल। मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है ना कि सबके सब फ्रंट एंड इंजीनियर है या बैक एंड इंजीनियर है, मतलब बहुत सारे रोल्स होते हैं। सो सबसे हॉट टॉपिक क्या है, या सबसे तो 2-4 लिस्ट बन जाएंगे कि ठीक है ये चीजें अच्छी चल रही है मार्केट में आजकल। अब मैं एक्सप्लोर करता कि अच्छा होता क्या है इनके अंदर, मतलब क्या करते हैं लोग, इसको इस ये जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मतलब क्या आउटकम होता है, क्या प्रोडक्ट होता है। उससे मेरा थोड़ा सा और फिल्टर होती चीजें, तो इवेंचुअली मैं एक या दो चीजों पे आके रुक जाता कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी जो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। सपोज अ गाय थिंक्स या मैं फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सही लग रहा है, या मशीन लर्निंग करना चाहता हूँ बहुत सही लग रहा है, तो अब इनमें से एक चीज करनी पड़ेगी। सो आई इवेंचुअली विल टेक अ लुक एट कि फ्रंट एंड इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए क्या आना चाहिए। सो उसमें मेरे को समझ में आएगा कि ठीक है मैं ये चीज कर भी सकता हूँ, मतलब सपोज मशीन लर्निंग करने जा रहा हूँ बट मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, सो मैं मशीन लर्निंग नहीं चूज करूंगा ना, मतलब आई बी पहली रेड सिग्नल है कि यार बहुत सारी मैथ्स लगने वाली है अच्छी खासी, बट मतलब मशीन लर्निंग मत करो कि मैथ्स वीक है। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत मजा आता है मैथ्स करने में, बहुत ही ज्यादा मजा आता है, ठीक है, तो फिर मैं मशीन लर्निंग की तरफ जाने की ट्राई करूंगा। नाउ आई विल सी कि अच्छा ठीक है एक चीज डिसाइड कर ली मेरे को ये बनना है, सपोज एमएल फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है। अब फ्रंट एंड इंजीनियर बनने के लिए व्हाट डू आई हैव टू लाइक प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, अच्छा कोड लिखना आना चाहिए, कोड क्या होता है, कोड कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें मतलब एक्सप्लोर करने स्टार्ट करूंगा, एंड इवेंचुअली आई कनेक्ट दोस डॉट्स फाइनली कि यार ये सब कनेक्ट करके एक डिसेंट, अच्छा आपको ये पता है कि फ्रंट एंड इंजीनियर थोड़ा बहुत क्या करता है, थोड़ा बहुत कोडिंग आती है, मुझे हल्की सी बहुत कोडिंग आने लग गई है, देन आई मतलब so, इसमें टाइम मतलब थोड़ा ज्यादा लग सकता है, ज्यादा जब बोलूँ तो इट माइट टेक यू लाइक 1 ईयर के अराउंड भी लग सकता है कि बिल्कुल ही स्क्रैच से कर रहे हो कंसिस्टेंटली आप, तो 1 ईयर में यू आर अ साउंड फ्रंट एंड इंजीनियर, जिसको डिसेंट लेवल का कहता हूँ मैं, एवरेज एवरेज तो आप बन ही जाओगे इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। तो एंड 1 साल इज अ लॉन्ग टाइम, बट
एकदम ही नॉन टेक से टेक में जाना, बैकग्राउंड में चेंज करना है विदाउट जीरो, मतलब विद जीरो एक्सपीरियंस इन कोडिंग, सो 1 साल तो लगना बनता ही है. Let's move on to the next question, which is, let's say somebody has now been inspired to become a software dev. For example, I'll take a simple scenario of you decide to become a front-end engineer. Okay, I'm very obsessed with front-end guys. So if you want to become a front-end engineer, let's suppose. So what how would you start to actually like ठीक है डिसाइड करने के बाद अब मेरे को फ्रंट एंड इंजीनियर की चीजें पढ़नी है, आई हैव टू गेन दो स्किल सेट, ठीक है, जो आजकल मार्केट में रिक्वायर्ड है, आई हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स एंड देन आई इवेंचुअली आई हैव टू सी फ्यू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कि यार फ्रंट एंड इंजीनियर का इंटरव्यू कैसा होता है, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू क्रैक एन इंटरव्यू एंड देन get into the front end की job role ना. So cracking the interviews and again very important thing. So you'll first of all you'll learn some basic things कि ठीक है यार YouTube से कोई resources देख लिए, मतलब there are few मतलब few channels जिससे थ्रू आप फ्रंट एंड का चीजें सीख लेते हो. Udemy पे कोई कोर्स कर लिया, क्रैश कोर्स कर लिया कि ठीक है यार चलो क्रैश कोर्स करके एटलीस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि अब मेरे को थोड़ा बेसिक पता है, मुझे पता है फ्रंट एंड में क्या क्या होता है, नो द टॉपिक्स, लेट्स एक्सप्लोर द टॉपिक्स डीपली. एक एक करके टॉपिक्स में फिर आप ब्लॉग्स, मतलब गूगल पे लाइक देयर आर मेनी ब्लॉग्स जहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाती हैं. यूट्यूब पे यू गेट गुड वीडियोस, फ्री रिसोर्सेज है पूरा मतलब. एंड उसके अलावा आई मीन यू लर्न व्हाइल यू आई मीन ब्रेक थिंग्स. सो बेसिकली स्टार्टिंग अर्ली इज व्हाट आई think is the best thing a guy can do to himself or herself. So starting early मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप बहुत ही हैवी पैकेज का इंटर्नशिप करो. ट्राई टू इवन, मतलब मैंने तो ऐसे भी किया था, मतलब आई इवन डिड फ्यू प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आई इवन वाज नॉट पेड. मतलब लोग काफी बोलते हैं ना पेड इंटर्नशिप इज अ, मतलब अनपेड इंटर्नशिप इज जस्ट अ सिन, मतलब अनपेड इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए. आई एग्री, मतलब ऐसे फ्री में काम नहीं करना चाहिए, बट दैट वर्क इज समथिंग विच आई वांटेड टू डू एज अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग. ठीक है, मेरे को मेरे अंदर से मेरी कॉल थी वो कि आई डोंट वांट एनी मनी आउट ऑफ दिस, बिकॉज बहुत ही अर्ली है मेरे लिए. आई वाज नॉट दैट गुड कि मेरे को इंटर्नशिप एक्चुअली मिले भी. देयर वर गुड पीपल हु वुड हैव गॉट दैट इंटर्नशिप, बट स्टिल मैंने उसको किया बिकॉज आई वांटेड टू लर्न समथिंग, मतलब आउट ऑफ इट, पैसा कमाने के लिए नहीं था. सो आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 1 or 2 months. उस 1-2 महीने में मैंने जितना सीखा था उससे पहले 7-8 महीने मैंने उतना नहीं सीखा था. एंड उसके बाद से मैंने कोई भी अनपेड वर्क नहीं किया, मतलब सो दैट अनपेड वर्क एक्चुअली मतलब मेरे को उसने ऐसी चीजें दी विच इफ सपोज आई वुड हैव गॉट अ पेड इंटर्नशिप एट दैट पॉइंट तब मुझे नहीं मिलती. सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. ठीक है, एंड देन सो आई वुड से अर्ली स्टार्ट इज अ वेरी गुड थिंग. अर्ली स्टार्ट मतलब ये नहीं कहूंगा कि 12th में 11th में कर लो यार इंटर्नशिप, बट कॉलेज में जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, डू अ वेरी मतलब नॉर्मल सी इंटर्नशिप करो, जस्ट मेक प्रोजेक्ट्स वहाँ पे थोड़े बहुत मिल जाएंगे बनाने को. सो विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट योर स्किल सेट. तो उससे काफी बेनिफिट होता है. एंड दिस चेन गोज ऑन, मतलब ऐसी अब ये दिस इज द बेसिक्स कि किसी भी चीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. एंड देन इवेंचुअली यू सी द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ फोक्स आउट देयर. सपोज इफ यू वांट टू जॉइन क्रेड, सपोज, सो क्रेड का क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, यू सी मतलब पीपल आउट देयर टेलिंग यू अबाउट क्रेड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. Right. सही है तथागत. So it was like a pleasure meeting you. And in the end, if you want to have like a sign off message to anyone who wants to become a dev or maybe aspiring to apply for a job or something, if you have any message you can share. So I generally share the same message while I mean signing off on every interview. I that is the entire podcast revolved around like basically life of a software dev, and then how to become a software dev and whatnot. So, the crux of everything is patience and consistency. That is what I said earlier as well. These two things are very important when it comes to any role. Any role, I mean, any role का मतलब है कि suppose I am a huge fan of cricket. ठीक है, I play cricket on every weekend, and if I'm not consistent with that ना, so वहाँ पे भी the performance goes away, no matter how good you are. ठीक है, so consistency is important in every aspect of your life and everything you do. I mean daily life में daily routines हो गए और work job हो गया, जो भी हो गया. And patience is also like pretty important. ठीक है, like I came across few people who were very upset because they were not able to actually get a switch or make a switch from like last 2 months. ठीक है, एंड दे वर लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि ये या 2 महीने हो गए कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं, स्विच नहीं हो पा रहा है, कभी इंटरव्यू खराब हो जाता है, कभी इंटरव्यू कॉल नहीं आता है. सो डिफरेंट प्लेंटी डिफरेंट रीजंस. सो दैट
सिचुएशन लैक्ड पेशेंस, ठीक है, मतलब पेशेंस रखना पड़ता है। एंड किसी किसी को जॉब 1 महीने मिल जाती है, किसी को हफ्ते के अंदर ही, मतलब एकदम पहले इंटरव्यू का कन्वर्ट हो गया, किसी किसी को 6 मंथ। आई नो पीपल हु हैव टेकन 6 मंथ्स टू एक्चुअली स्विच, एंड स्विच करने के बाद उनको जॉब भी एकदम ही अच्छे खासे लेवल की जॉब मिली है, ठीक है। सो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज व्हाट विल अल्टीमेटली लीड यू टू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। Right. So what you're saying is that if you have patience and consistency, no matter what you do, तुम्हारा इन या जनरल लाइफ में बहुत स्कोप है. सो हाँ, इसी के साथ लेट्स एंड दिस इंटरव्यू. एंड बहुत स्कोप है, हमारा चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, वी आर लिंकिंग Tathagat's LinkedIn handle. So if anybody has any query, you can ping him, and we'll also link some resources if Tathagat has some, and you can follow them too. So it was a pleasure meeting you, Tathagat. Thanks a या lot. सेम है नमन। Thanks. Bye. बाय।